सो बेसिकली जो कॉन्सर्ट सीन है इंडिया के अंदर लाइक करंट पिछले साल 2022-2023 इतना ज़्यादा नहीं था, बट 2024 से इट हैज़ कम टू अ बूम। एंड रिसेंटली अभी एक सर्वे हुआ था दैट लाइव इंडस्ट्री लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री, द क्रिएटर्स इंडस्ट्री, लाइक इट्स ऑन द बूम एंड इट विल grow up by 18%, which is almost $235 million by 2027. एंड बहुत सारे आर्टिस्ट लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो गए, नाउ दे आर planning a lot to come to India because India के पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है which is like receptive to their music. पहले हम देखते थे up north बहुत कम इवेंट्स होते थे, but now it's going good. So Samarth, and हमें पता लगा है कि like you have been to बहुत सारे concerts पे आपने like you have played and you have worked with many great artists. So take us back to your very first big concert. What was your role that day and what was going through your mind जब crowd cheer करना शुरू करता है और इतने लोग होते हैं वहाँ पे और आप कंसोल के सामने बैठे हो? So what's that experience यार? My very first experience, I would say as a concert, मतलब yeah. Who was the first big artist? मतलब ऐसा Big artist की बात बता दो कि first big बड़ा concert किया हुआ है. भाई 20 साल लिटरली से नहीं industry याद में भाई, है. लिटरली नहीं याद भाई, 10 साल. अभी recent वाले बता दो, वो तो काफी big Okay, है. चलो recent artist जो okay, first big concert जो मेरे को याद है was Arijit Singh, which happened in 2022 in Chandigarh itself. Okay. So that was the very first concert, मतलब जो मेरे को याद है in terms of बड़े artists. And Arijit Singh obviously सभी के favorite artist है, and he is given in a lot of songs into the industry. तो उस प्रोजेक्ट पे काम करना was like a dream come true because like to see all those people work in day out, like having a team of 100 plus people working all day in day out just to get that one big concert so that everybody enjoys was surreal. So how it all started, मतलब कि कैसे अरिजीत सिंह तक आप पहुंचे कि रेफरेंस थ्रू या योर मतलब someone was working तो रेफरेंस हुआ ऐसे, नहीं तो some suggested you, कैसे हुआ वो? So basically, like if I go back when I was in school, मतलब where did music come from? So basically family में music बचपन से ही था, मतलब you grow up listening to music. तो उस टाइम पे cassette players होते थे, like tape players हाँ, होते हाँ, थे, हाँ, and like you used to listen to it. उसमें निकाल के कुछ भी आ रहा है, मतलब that was what I've seen, but late मतलब उससे भी पहले like parents used to have those vinyl records जो अभी भी है, मतलब घर के पास, मतलब घर पे I've preserved them. Don't know चलते कि नहीं चलते. So I think it's in the blood. And coming from there, I started from school into music. एक activity होती थी पहले. So I used to just go see what other people are doing. I used to practice a lot. Like this is third class, fourth class ki baat. And that's where it all started. Then I started performing at school assemblies, and which helped me a lot. What did you play? I used to play piano. Okay. Yeah, I used to play piano at school assemblies. वहाँ से start हुआ. Then then later school के अंदर जैसे co-curricular activities होती है, तो then they introduced guitar for the very first time. तो जब गिटार आया उसके बाद मतलब उनका ये था कि जिसके पास गिटार है वो ही क्लास में आ सकते हैं. तो फर्स्ट 2 क्लासेस दे यूज्ड टू लेट मी इन, एंड घर वालों को बोला कि गिटार लेना है. घर वाले कहते क्या करेगा गिटार? कहते तो यू ऑलरेडी नो है ना, यू ऑलरेडी कहते क्या करेगा गिटार? मैं कहा मतलब मेरे को चाहिए. सो घर से उनसे गिटार लिया. गिटार लेके पहली क्लास गया, स्कूल ने एक्टिविटी बंद कर दी. सब घर वालों से लड़के गिटार तो ले लिया था, तो अब उसका क्या करना था? तो that's when I started मतलब obviously I had some knowledge about music from the piano, but again उसको गिटार में करना, वो initially strings दर्द, मतलब हाथ दर्द करना है, हाथ करना, तो somehow खुद से कीड़ा जागा, started playing songs, and that's how I learned guitar.
तो लर्निंग कैसे थी, मतलब खुद ही खुद self taught, Oh, everything wow. is self taught. Was it like YouTube or something? No, Oh wow. So it was basically 2011 12 7th 8th class में. yes, I think so. तो 2012 में विदाउट यूट्यूब आपने खुद गिटार सीखा है यार. हाँ, Commendable. basically because I had knowledge about the music and how scales work and जैसा भी वो होता है. So उससे start होके then 10th के exams खत्म हुए. So there was one very close friend of mine in my school and he was a drummer basically. तो उसने बोला कि यार हम ना शो करेंगे स्कूल के बाद. मैं कहा ठीक है. Somehow he landed with an artist and he called me up one day कि भाई शो करेगा क्या. मैं कहा कर लेंगे. कहते ठीक है, तेरे को पियानो प्ले करना है, तू प्रैक्टिस पे आ जा. तो गए प्रैक्टिस पे. उसके बाद 10th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद आई गेस फर्स्ट शो हुआ मेरा एलांटे के अंदर. देयर वाज दिस प्लेस कॉल्ड मोका Okay. बैक देन. तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल पेड गिग एंड 10th क्लास में. एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. है ना. उसके बाद शोज पे शोज, वर्किंग विद मोर आर्टिस्ट. उसके बाद काफी डिस्कवर किया म्यूजिक, अलग जॉनरास, अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया, स्टूडियोज. and 10 years now. And later on, मतलब I think 5 years or something into it, जब आप परफॉर्म करते हो ना, मतलब तो आपको होता है कि मतलब इट्स अ वेरी मोनोटोनस थिंग. क्योंकि अगर जैसे कोई भी आर्टिस्ट होता है उसका एक स्पेसिफाइड सेट लिस्ट होता है कि उन्होंने ये परफॉर्म करना. तो बीइंग एन आर्टिस्ट आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मोनोटनी और मतलब यू एंड मोनोटनी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. आई थिंक सभी को फील होता होगा. तो आई थिंक वो एक जब टाइम पे मोनोटनी हिट होती है ना, तो यू थिंक कि यार ओके व्हाट एल्स आई कैन डू, यू नो. मतलब आई वांट टू एक्सपैंड. मतलब ये तो है मेरे पास, व्हाट मोर कैन आई एक्सपैंड. सो दैट्स व्हाई मतलब वहां से एक वो कीड़ा जागा कि मतलब कि ओके आई एम प्लेइंग म्यूजिक, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, बट एज एन ऑडियंस उनको क्या परसीव हो रहा है, उनको क्या हो रहा है. सो दैट्स हाउ आई यू नो लाइक दैट कीड़ा ऑफ साउंड इंजीनियर गॉट इनटू माय माइंड. After 5 years. बट ये काफी वो बात है ना, लाइक मोस्ट पीपल डोंट नो कि साउंड इंजीनियरिंग भी कोई चीज होती है. करेक्ट करेक्ट. तो वो एकदम साइडलाइन पे जाके वो चीज करना, और लाइक आई थिंक ये एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस है कि इट इज अ करियर पाथ व्हिच पीपल कैन चूज, एंड यू नो. डेफिनेटली यस. तो यू आर द गाय बिहाइंड यू नो साउंड्स जो सब फील करते हैं, rather than like just hearing it, I guess, in the concerts and all the live arenas. तो what does your job really look like? मतलब पूरे behind the scenes क्या हो चल रहा होता है. मतलब साउंड इंजीनियरिंग तो हमने बात कर ली, बट होता क्या है एक्चुअली? ओके, सो बिहाइंड द सीन्स होता है मीटिंग द डेडलाइंस, लेबर से काम लाइक करवाना. एकदम स्टार्ट से स्टार्ट पे पहुंचते हैं कि लाइक लेट्स से कल कॉन्सर्ट है, तो ये कब से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है? ओके, फॉर एग्जांपल अगर एक कल कॉन्सर्ट है तो उसकी प्रेपरेशंस चलती है लाइक डिपेंडिंग अपॉन द स्केल. इफ इट्स अ बिग कॉन्सर्ट जैसे अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ लेवल टाइप, तो 1 वीक पहले सब स्टार्ट. मतलब ऑब्वियसली पाइपलाइन के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई भी टूर होता है, सो देयर इज अ स्पेसिफिक गाइडलाइन जो उनकी मैनेजमेंट से आती है कि इट हैज टू बी दिस वे, एंड सब कुछ डिसाइडेड होता है. सो वी गेट द प्लान्स एंड ट्रैक लिस्ट भी तभी आती है कि या फिर नहीं, वो दैट इज विद द आर्टिस्ट ओनली. यस. सो वी गेट हाउ कि हमारे को अरीना कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे जोन्स वो करने हैं. सो ऑल दैट यू नो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या वेन्यू है, डिपेंडिंग अपॉन द वेन्यू सारी मेजरमेंट्स होती हैं पूरे वेन्यू की. For example, if we are doing 100 meters of a ground which is I mean 40 meters 40 feet wide, है ना. मतलब तो उसको कैसे हमारे को डिवाइड करना है एंड टू मेक श्योर कि एवरी मतलब जो सबसे फर्स्ट रो में बंदा खड़ा और जो सबसे लास्ट में है वेन्यू के, दे गेट द सेम एक्सपीरियंस टू गेट टू हियर, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने भी पैसे खर्चे हैं यार, है ना. तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट कि यू नो इट शुड बी like what we are doing, it should be you know justifiable to everybody who's coming now to see that. तो ऐसे शुरू होता है. फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एरिया हमारे नंबर ऑफ स्पीकर और बॉक्सेस कैसे होते हैं, कहाँ प्लेस होंगे,
सब कैलकुलेटेड. देन स्ट्रक्चर होता है, एक हमारा स्ट्रक्चर बनता है. स्ट्रक्चर के ऊपर वी फ्लाई द PA, like the speakers. PAs, public addressing systems, PA systems. So then speakers are flown, है ना, मतलब उनको हम टांगते हैं so that कि हमारा जो एरिया है वो equally distribute हो and everybody gets the experience. So that's how it is. And तो इसमें अब जैसे कुछ स्पीकर्स ऐसा होता है ना कि कुछ इज इट टू बेसी, इज इट मतलब ट्रेवल कुछ ज्यादा हाई है, लो है, तो वो चीजें मतलब इस बैक एंड में सेट हो रही हैं. yeah, so that is the so sound engineer comes in this place. So there are big consoles, पहले क्या होता था कि analog consoles होते थे. Now the technology is very much like over the top, and अब digital mixers आ गए हैं markets के अंदर, and you have the control over basically everything that you can do. So total sound आप अपने उससे आप mold कर सकते हो how you want it to sound basically. थ्रू अ लिटिल समथिंग, मतलब मेरे को कि क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, मतलब लाइक Like फॉर एग्जांपल. everything. So basically अब जैसे हम एक ट्रैक सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ट्रैक सुन रहे हैं, सो जब हम उसको सुनते हैं तो एवरीथिंग साउंड्स लाइक वेरी गुड. कुछ हार्श नहीं है, कुछ चुभ नहीं रहा, एवरीथिंग इज मेलो. ड्रम्स पीछे बज रहे हैं, सिंथ बज रहा है, and vocals are just floating on the top, so it's audible. Similarly in live setup, मतलब जैसे अब ट्रैक is recorded in a studio environment, so obviously you can do a lot of takes, you can do a lot of like processing to it to I think make it sound good. But live scenario के अंदर it gets very restricted, so वही like आपके पास उतनी जगह है to like do or die. लाइक वही स्टूडियोज में मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा मिल जाता है आपको कि आप फिर से कर सकते हो. Definitely. लाइव में बहुत मुश्किल है, वो गारा गारा और वॉइस दी जा रही पीछे, तो इट्स विल बी एन इशू. बट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ में होते हैं उनके, तो वो भी ऑन द स्पॉट Yes. वो कैसे मैनेज हो रहा होता है? So basically जितने भी instruments होते हैं they are all connected to like through the cables. Okay. And I'm getting all the signals. जैसे मेरे पास keyboard का signal आ रहा है, so I can decide as a mix engineer I can decide कि मेरे को क्या चीज कितना चाहिए to make it sound like good, like a track basically. बट वो लाइक वो डिले, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे प्ले हो रहा है, आप ऑब्वियसली यू Yeah. आर हियरिंग फ्रॉम द हेडफोन्स, और आप तब उसके हिसाब से उसको चेंज कर. Yes. एंड आप कह रहे हो एनालॉग नहीं है तो इट्स ऑल डिजिटल. Yes. There's no delay. मतलब अगर वो play कर रहा है, अगर वो एक ही play कर रहा है, so you are hearing it at the same time. Right. तभी इससे पहले जो बड़े कॉन्सर्ट होते हैं उनका रिहर्सल्स होती है जिसमें Yeah. ये सब चीजें डिसाइड होती है, ये सब चीजें Uh, सेट की जाती है कि एक डिफॉल्ट सेटिंग टाइप. और उसके बाद लाइक जब मान लो, मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे जब कॉन्सर्ट है तब रिहर्सल्स हो रही है तो जो साउंड चेक करते हैं, हमने देखा है इतने लोगों को जैसे. बट मुझे ये लगता है कि जब लोग होंगे वहां पे दे विल बी क्राइंग द नेम आउट ऑफ द आर्टिस्ट, और वो हंसेंगे और वो हूट करेंगे, तो उनकी साउंड के साथ उसको मैच करना, वो ऊपर नीचे करना, तो आप मोमेंट पे वो चीज कर रहे हो. yes. Correct. तो रिहर्सल में भी आता है कैसे कि रिहर्सल में एक डिफॉल्ट सेटिंग Rehearsal basically होती है उनकी सेट लिस्ट के लिए कि उन्होंने क्या गाने गाने हैं. अच्छा, तो आपका काम फिर लाइव ही है मतलब. Yes. ओके ओके ओके. तो मतलब अच्छा, आप रिहर्सल्स में नहीं होते? Rehearsals भी I am a part of rehearsal क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि क्या सेट है, कहाँ पे मैं कौन सा गाना है जहाँ पे मेरे को चाहिए कि मेरा गिटार्स एकदम सेट में ऊपर आ रहा है, सो इट इज ऑडिबल. एक सोलो पार्ट है, और कहाँ पे मे बी एक पियानो पार्ट है जो बहुत ज्यादा ऑडिबल होना चाहिए. सो आई एम अ पार्ट ऑफ इट. सो बेसिकली इफ आई एम वर्किंग विद एनी आर्टिस्ट, सो आई नो उनका पूरा सेट कैसे क्या है, कहाँ पे क्या आना चाहिए, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न, क्योंकि आप ही हो जो एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस डिलीवर करना है. वो तो एक स्टोरी लिख रहे हैं, बट आप एक ऑथर हो जो उसको पब्लिश कर रहे हैं. सो दैट इज लाइक ये दैट. बहुत अच्छा एग्जांपल है. बहुत अच्छे हाँ. एग्जांपल है. तो अभी आर्टिस्ट का बात हो रहा है, तो हाँ, तो दिलजीत दोसांझ एंड करण औजला,
तो ये अभी इनके बाद ही बहुत कॉन्सर्ट्स का और टूर्स का कल्चर इंडिया में शुरू हुआ है। आई फील कि पहले एक साल में एक बार होता था कॉन्सर्ट बड़े बड़े स्टार्स के, तो अभी कुछ देर पहले इन्होंने जब पूरे कॉन्सर्ट्स किए हैं तो एकदम से चेंज हो गया सिनेरियो पूरा। तो इनके साथ बैक एंड पे काम करके कैसा एक्सपीरियंस है ऐसे आर्टिस्ट के साथ बैक एंड पे? ओके, सो बेसिकली जो कॉन्सर्ट सीन है इंडिया के अंदर, लाइक करंट पिछले साल 2020 टू 2023 इतना ज़्यादा नहीं था, बट 2024 से इट हैज़ कम टू अ बूम एंड रिसेंटली अभी एक सर्वे हुआ था दैट द like live industry, like music industry, the creators industry will go to, like, it's on the boom and it'll grow up by 18%, which is almost $235 million by 2027, जो एक वो है। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट, लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो गए, इंडियन आर्टिस्ट हो गए, नाउ दे आर प्लानिंग अ लॉट टू कम टू इंडिया बिकॉज इंडिया के पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है which is like receptive to their music and they like, जैसे अभी Coldplay हुआ था, so similar to that a lot of artists have been coming to India now and obviously India के पास जो infrastructure भी है, it is growing, day by day it's growing and which is very good. So पहले हम देखते थे up north बहुत कम events होते थे, but now it's it's going good. Coming to working, like with the team of Diljit and Karan Aujla, I think so basically दोनों के साथ there have been the Canadians that have been working with them and they are very professional. They actually know what they are doing, which is like very good thing. मतलब मेरे को जैसे इंडिया में फील होता है like I've worked with some artists and जो उनके साथ इंडियन टीम है जो लोग काम कर रहे हैं, दे आई डोंट नो, मतलब उनको लगता है कि अगर हम किसी को कुछ बता देंगे तो फिर हमारा क्या होगा वाला स्ट्रैटेजी। Whereas like I got तो करण औजला के कॉन्सर्ट के अंदर आई वाज ऑन अप ऑन स्टेज एंड उनके मॉनिटर इंजीनियर है, राइट, एंड आई जस्ट वॉक्ड अप टू हिम एंड मेरे पास, क्योंकि आप रोज सीखते रहते हो कुछ ना कुछ तो आप अपनी स्टूपिड क्वेरीज लेके जाते हो किसी के पास, तो बट दैट गाय ही हेल्प मी, लाइक उसने मेरे को बताया, ही टोल्ड मी अबाउट द इनसाइट्स, वेयर एज आई हैव बीन टू वन गाय एट अरिजीत्स कॉन्सर्ट एंड आई डोंट नो, मतलब वो मेरे से अनॉय हुआ, क्या हुआ, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया जबकि मैंने उसको बोला भी नहीं था। तो हाँ, मतलब देयर हैव बीन पीपल लाइक दैट, बट यस, I think so. Experience wise, yes, मतलब people are learning now. And India में काफी सारे platforms भी हैं, जैसे there have been these audio academies in Mumbai or Bangalore which have been helping. Basically they give you a 6 months of a training kind of a thing, so that आपको पता रहे कि क्या basics है industry के बारे में. So if anybody new who wants to join into this can like it's a good way for them to go through that channel. You have also worked with big names like Karan Aujla, Diljit, Divine, Dido. So I am trying to understand, are these artists like having some specific preferences according to them? Like must be every artist have their own preference. Like I want my sound to hear like this. I want my audience to feel this kind of vibe. So how are these preferences different among all? So if I say about Diljit, Okay. सो अब क्या होता है कि जब भी ऑब्वियसली एवरी आर्टिस्ट वांट्स कि मेरे ऑडियंस को सबसे बेस्ट मिले एंड आई गेट द मैक्सिमम क्राउड पोर, है ना, बट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वन थिंग दैट प्लेज अ वेरी की रोल। अब जैसे यहाँ पे कॉन्सर्ट्स हुए, करण औजला एंड दिलजीत, show was massive, but back end पे administration had to face a lot of challenges. Local residents had, and जो लोग थे उनको काफी challenges face हुए, which led to another thing कि AP ढिल्लों का concert had to like shift to another venue because we were already prepared for because 3 of them were lined up sector 34 के अंदर, and सबसे पहले इवेंट में क्या हुआ कि people like it was very mismanaged by the
I think the management and the administration, people had to park cars right in front of sector 34, किसी के भी घर के आगे उन्होंने खड़ी करी, तो उसकी वजह से बहुत havoc create हुआ, like residents were not happy about that, and it created a lot of like 2-3 hours of jams to get out of the venue. So later when it came to Diljit, and I think वो सबको पता ही है कि administration and Diljit की बनती नहीं है and there were a lot of clashes, so that's why they tried to put him down, tried to get a lot of things. There was a restriction on the very morning of the concert day that आपका जो venue है, venue से बाहर 87 डेसिबल से ज्यादा साउंड ब्लीड नहीं होना चाहिए. Okay, oh, wow, that's also an issue. Okay. 87 डेसिबल से ज्यादा साउंड वो बाहर नहीं जाना चाहिए. Out of the venue. Out of the venue. So that's controlled. That can be controlled. That no, you cannot hear. I think like मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितना बाहर जा रहा है, कि आई फील अंदर का साउंड थोड़ा फिर कंट्रोल हो सकता है, बट अगर एंड तक पहुंचाना है आवाज तो Obviously, वो you have to- आपको correct. प्रॉपर रखना पड़ेगा, एंड व्हेन यू आर कीपिंग दैट तो वो बाहर Obviously, it will be. So 87 decibels is like what we are talking right now. आप इस लेवल पे कॉन्सर्ट नहीं कर सकते. पता चला Usually a concert goes to 102, 103 decibels. Like it goes that loud. So the team I was working with, they had placed mics venue के बाहर, and उसकी proper time graph के साथ सारी recordings हुई, कितने decibel हुआ है bleed, which obviously got out of hands. Not that much, but yes. So we had to send a report to the administration later, which they got fined to the team. So yeah, that's how it happens. Okay. So like question was कि preferences stars का होता है. कि जैसे हाँ, तो we want to know about कि for example करण औजला wants कि मेरे यार concert में I want this kind of vibe, तो वो क्या preference होते हैं कुछ artist का ऐसा? So basically artist नहीं होता, it is all the management that is taking care of that. Okay. Artist का काम है कि मेरे को आना है, मेरे को perform करना है for this specified time 2 hours, and मेरे को जाना है. जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा. Right, but I think जो AP ढिल्लों का concert हुआ था and similarly हनी सिंह का concert हुआ था, so basically like since पहले इतना ज़्यादा infrastructure नहीं था यहाँ पे, so जैसे infrastructure आ रहा है, so we are getting more options. जैसे आप AP ढिल्लों का या हनी सिंह का concert देखोगे, so they did a 360 stage. Okay. Which center में एक stage लगा and everybody was around that. So that is also one good like thing for, क्योंकि it's not justifiable कि अगर आगे वाला 5,000 पे कर रहा है and पीछे वाला 1,500 पे कर रहा है, so he has to watch it from a long back. Audience जो- experience बढ़िया हो जाता है. Yes. So preferences तो यही होता है सभी का कि हमें अपने ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं हो पाता है या कुछ हो है, बट इज व्हाट आई थिंक इट इज. So दिलजीत, करण औजला, AP ढिल्लों एंड हनी सिंह, इन चारों में से सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया आपको? सभी के साथ. सभी के साथ. Everybody was एक एक्सपीरियंस होता है ना कि यार दिस वाज द बेस्ट. सभी बेस्ट है यार, सभी बेस्ट है. सभी आई कैन नॉट डू 1 2 3 4 क्योंकि मेरे लिए तो सभी एक एक्सपीरियंस है. फॉर दैट एनी, अगर मैं कोई भी आर्टिस्ट पहली बार ही देख रहा हूँ, फॉर मी इट इज एन एक्सपीरियंस. फॉर मी टू एक्सपीरियंस इट फ्रॉम एनीवेयर, इट्स लाइक दैट. Can you like sense the audience reactions कि ये वाला concert शायद audience ज़्यादा enjoy कर रही है, ऐसा भी होता है. जो फैंस है वो तो करेंगे ना. But you can like hear the noise and अच्छा यहाँ पर लोग, because I guess you are sitting in the center like. Yes. So basically I'm all around the venue. I can be आगे पीछे कहीं भी, so it's totally up to me. But yes, if I'm like at the board, so I am there at the center, front of house. So that is like that. कुछ ऐसी कोई big mistake जो आपने face करे हो अपने अभी तक career में कि यार ये blunder हो गया था. सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट था पेक फेस्ट में. ओके. This is I'm talking about 2018 or 2019. सब कुछ हो गया, साउंड चेक हो गया, रिहर्सल्स हो गए, शो शुरू होता है. 15 minutes into the
शो लाइट चली जाती है, सब बंद. Okay. Then So turns out to be जो genset वाला बंदा था, he had put a faulty generator and due to some issue वो बंद हो गया चलते हुए बीच शो में. So you cannot do anything right now. So you have to get a new genset and then you have to put everything on power and then you have to run everything. So this is one thing that I remember. But कितने देर बंद रहा मेरा ये Turnout क्या होगा? 30 minutes. So फिर she waited or she was like She was like, she got off the stage हाँ 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 and then once everything was sorted, then she came back to एंड मतलब कुछ ऐसे भी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को पता लग रहा है कि दिक्कत हुई है, बट ऑडियंस तक वो चीज शायद मी एज एन ऑडियंस मेरे को पता भी नहीं लगा कि अच्छा ये हो गया, बट यू नो कि ये दिक्कत हुई है. बैक एंड पे तो बहुत कुछ चलता है. Okay, कुछ ऐसी कोई मिस्टेक एंड टॉप ऑफ द माइंड कुछ यार ये चीज तो हर एक मतलब हो ही जाती है और सब एक ऑटो ट्यून सुना होगा आपने Yeah, कि yeah. काफी सारे आर्टिस्ट ऑटो ट्यून यूज करते हैं. तो एक शो था जहाँ पे क्या हुआ, आई थिंक किंग का शो था. Okay. That was 2021 or 2022. It was this banger. okay banger fest Yes. So what happened कि जो उसका मतलब basically, so there's one guy who's taking charge of everything. He's called the playback engineer. So he controls everything कि tracks play हो रहे हैं and all the effects that are going to his work. तो बीच शो में क्या हुआ कि उसका system crash हो गया. तो चलते चलते and since I was there at the front of house, so the playback engineer and the front of house engineer, so they were in sync together. So the front of house engineer has to put from his laptop on auto tune for that specific track so that it does not sound off. But since you were at the back end, you know what's going on. One thing that happened again was at the Shreya Ghoshal's concert. So again सब कुछ रिहर्सल हुआ, सब कुछ हुआ, show started, first song and like जैसे आप कहते हो ना कि buffer हो रहा है, sound buffer हो रहा है, so you could hear the sound is buffering and all. Happened for 2-3 songs which was rectified later कि एक बफर हो रहा है का मतलब जैसे आप जैसे how do we hear a buffer, मतलब गाना चल रहा है and you can hear some screeches and वो कि okay buffer buffer, yes, like it's loading kind of thing. got it So basically a track playing है, जैसे उसमें बीच में glitches आ रहे हैं, जैसे वो पुराने tape recorders में कई बारी glitch होता था. So it was sounding like that, which later had to be rectified because of a faulty wire. So yes. तो बफर फिर ऑडियंस को ये तो पता लगा होगा आई गेस Yes. बफर तो पता लगा होगा फिर उसमें Correct. So the show had to be stopped. okay 10 minutes change of wire and then. So how you find this out? हाँ एक वायर फॉल्टी वैसे ही कुछ So again, yes. So live sound engineering is all about how fast you rectify what's wrong and how fast you fix it. Simple. ये डेफिनेशन देना चाहिए साउंड इंजीनियर का So basically, yes, it's very frustrating. मतलब I remember जब मेरे initial days थे, so you used to get so much कि भाई कहाँ से क्या issue हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, मतलब तुम खज्जल हो जाते हो. But later I think it comes with experience. The more you work, how like it also depends upon you how you wanting to learn, because this industry, like the entertainment industry altogether, is very uncertain and very unforgiving, because first of all you're working it's an hospitality industry, right? So you have to like work day in day out. It's a very thankless industry, and behind the scenes there are 300 people for you to run a very flawless show, but they are never in the limelight. So that is also one thing. But yes, people are recognizing it now. And बट आप लोगों को वो कब मिलती है लाइक कुछ गलत होता है तो व्हेन यू एज अ साउंड इंजीनियर आर लाइक हेल्ड अकाउंटेबल दिस इज बिकॉज ऑफ यू, ऐसी क्या चीज होती है
because wiring is, I guess, not your fault. It's the Correct. so what is like in your fault है ये accountability की ये mess up हुआ तो it's समर्थ. So basically अगर मैं कोई गाना सुन रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल और मतलब इफ एनालाइज सिनेरियो अगर कोई गाना बज रहा है एंड समहाउ कुछ भी अगर हुआ विच मेक्स माय परफॉर्मेंस और द आर्टिस्ट मतलब वो ऑडियंस को पता लगा कि यार ये तो सही नहीं लग रहा है, सो दैट इज व्हेन आई एम अकाउंटेबल. तो ये आर्टिस्ट को पता लग जाता है या फिर आर्टिस्ट को पता लगता है फिर एज ए मैनेजमेंट इट्स डिसाइडेड कि मे बी इट्स नहीं मतलब because yes management is involved, so there are people who have been like who are there a part of it and they keep a check so that, but नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि आर्टिस्ट को पता लगता है, but definitely अगर if there's something wrong so it is discussed with the team and you know we take a call on it how it's done. बहुत सारे आजकल के आर्टिस्ट दे आर यूजिंग आजकल तो ऑफ कोर्स सारे ही मेरे हिसाब से दे यूज अ ईयरफोन. Yes. सो उस ईयरफोन में क्या मतलब देयर इज उनका सॉन्ग चल रहा है which they do listen या दे लिसन टू ये जो गा रहे हैं उसके अंदर वो आवाज आ रही है, वो ईयरफोन का क्या यूज होता है? So that earphone is basically called in-ear monitor. ईयर मॉनिटर. Yes. Okay. So in-ear monitor का काम क्या होता है? So अब जैसे because अगर आप live setup में हो, so you are constantly exposed to you know like loud sounds every time, which is not अगर longer exposure है आपका towards loud sounds, so your hearing tendency gets lost over time if not taken care of. सो जो जितने भी आर्टिस्ट हैं नाउ बिकॉज वी हैव गॉट न्यू टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, तो उसके अंदर क्या है कि what I'm singing and what everybody else is playing, I can listen in my ear within a controlled environment and I can control the level. It's not too loud. मेरे पास जो बाहर वाली sounds है वो block हो जाती है and I can clearly hear what I'm singing and what I need in my monitors. So basically उसका ये purpose है. मॉनिटरिंग पर्पस है उसका. उसमें डिले भी होता है. डिले नहीं होता. डिले इज बेसिकली अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम कोई कॉन्सर्ट करते हैं तो एक मेन स्टेज के साइड पे स्पीकर्स हैं, ठीक है. बट मेरे पास एक बड़ा वेन्यू है तो फॉर एग्जांपल मेरे सो ऑब्वियसली आप एक स्पीकर है तो उसकी टेंडेंसी है इट कैन थ्रो यू नो ऑप्टिमल साउंड टू दिस डिस्टेंस एट अ गुड लेवल, है ना. उसके बाद वो लेवल कम होता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा. सो टू यू नो काउंटर दैट, सो आफ्टर कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि यू नो कि यहाँ पे मेरे सिस्टम की पावर कम हो रही है, सो आई प्ले अ डिले रैक वहाँ पे. सो डिले में क्या होता है, वी आर डिले टू दैट स्टैक, क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूँ मतलब पीए के पास हूँ और मैं एकदम एंड पे हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में तो बहुत टाइम लगेगा समझ. फॉर दैट दिस कॉम्पनसेट्स. सो दैट्स हाउ डिले वर्क्स. तो ये इन ईयर जो मॉनिटर होता है ये सिर्फ बड़े वेन्यूज के लिए होता है या फिर सभी के लिए होता है? डिपेंडिंग अपॉन. अभी पीछे एक कॉन्सर्ट हुआ था आई थिंक करण औजला का जिसमें उनका प्रॉब्लम आ रहा था ईयर मॉनिटर्स के साथ. तो ही वाज पॉइंटिंग आउट कि ये नहीं चल रहा और किसी मतलब और आई थिंक उनका जो मैनेजमेंट था उसने डिस्क्लोज किया था कि ईयर मॉनिटर्स नहीं चल रहे थे. करेक्ट. तो यूजुअली ईयर मॉनिटर्स अगर ना चले तो स्टार्स फिर भी जैसे पहले परफॉर्म करते थे विदाउट ईयर मॉनिटर्स, तो उसमें उनको क्या मतलब परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ेगा? यस आप सुनना चाहोगे ना, क्योंकि क्या मैं कैसा साउंड कर रहा हूँ? नहीं बट अब जैसे आपके एक स्पीकर्स है, ठीक है. स्पीकर्स एक डायरेक्शन में साउंड फायर कर रहे हैं, ठीक है. आप स्पीकर के पीछे हो हाँ मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है. तो आपको कुछ सुनेगा नहीं, आपको जो सुनेगा वो आगे से घूम के वापस आएगा आपके पास, हाँ which bound will होके take a आएगा delay, वापस. ठीक है. which will have some delay to it. Okay, But I want to अब listen to it, know what I'm singing. तो पहले क्या होता था, पहले वो आपने देखा होगा स्टेज के आगे ना स्पीकर्स रखते थे, छोटे छोटे मॉनिटर्स होते थे, so they were pointed towards the artist. But अब जैसे बड़े सेटअप्स है, for me to cover it into an entire with monitors is not easy. तो उसके लिए फिर हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज करते हैं. रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आपके आईएम्स होते हैं, आपके माइक्स होते हैं and all that works on that. सो समर्थ आप स्टार्स के साथ आर्टिस्ट के साथ घिरे रहते हो, लाइक कहीं यहाँ पे शो है कहीं वहाँ पे शो है तो मेजरली. तो अब आफ्टर लाइक यू हैव 10 years in experience अब यू आर गोइंग, तो अब मन करता है दोबारा म्यूजिक बनाने को, लाइक आर यू इनटू? Yes, I am producing music. Okay, वो you सब are yes producing yes I music. am producing music Okay. and
वो तो चलता ही है, लाइक यू आर टोटली लाइक इनटू म्यूजिक 24/7। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप शोज पे जा रहे हो, या आप घर पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब म्यूजिशियन या लाइव साउंड इंडस्ट्री के अंदर एक होता है, दिस टाइम कॉल्ड ऑफ सीजन, which is usually from April till September or October, क्योंकि peak weddings and events नहीं होते because of weather and other things. तो this is considered an off season for the industry, right? तो इसके अंदर क्या होता है कि now you have to do something, क्योंकि consistency ज़रूरी है, I think so, to be around music. So now you switch to other things, जैसे like आप production करते हो, कोई pending projects upcoming season के लिए, how you want to prepare, so वैसे रहता है। So अभी recently कुछ are you producing or making some music? So recently I've got one MIDI controller, which is a piano. Okay. So I recently got that. So basically अभी आजकल उसकी exploration चल रही है, features and all, how can I make like most out of it. And yes, working with other artists, abhi jaise I've been working with an artist, so she's been like doing her original songs and stuff like that. So that is also going on, so like that. जैसे कॉन्सर्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो मैं इसमें बहुत फैसिनेट हूँ, जैसे एड शीरन का कॉन्सर्ट होता है, Correct. तो उसमें वो खुद प्ले करता है, और एक उसका कॉन्सर्ट तो उसमें जो आगे उसका लगा होता ऊपर, है live yes, ऊपर, तो वो भी लाइव मैनेज हो रहा होता है या फिर वो yes, वो live होता है। ओके। और जैसे मेरे को लगता है सिमिलर काने भी ऐसे करता है, वो भी अपने बीट्स बना रहा होता है, तो वो भी ऑन द स्पॉट ही On the मैनेज हो spot. रहा होता है। डीजेस का थोड़ा डिफरेंट है। डीजेस के पास डीजेस यूजुअली एक अपना बनाया ट्रैक यूज करते हैं, एंड मे बी दे कैन लाइक डू सम एक्सपेरिमेंटेशन विद दैट। बट जैसे आप बता रहे हो कि एड शीरन, तो एड शीरन के अंदर जो भी वो प्ले कर रहा है, सो बेसिकली वो प्ले करेगा 4 बार्स के लिए। Yeah. वो फिर एक बटन प्रेस करेगा तो वो सेम चीज रिपीट होगी। देन ही विल पुट अनदर लेयर ऑन इट, लेयर बाय लेयर वो ऐड करता रहेगा, माइनस करता रहेगा, सो दैट्स हाउ इट बिकम्स अ साउंडस्केप। I love that thing about Ed Sheeran. वो उसने किया So था। that's a one man army. उसके बाद I watched Charlie Puth on that show. तो उसने कब के साथ इसको रिकॉर्ड किया, टन टन के, हाँ, कि we can too much bass, too much less bass, और it was also कि fascinating। आप कर सकते हो वैसा, like you can produce that So kind of- basically so when I perform, my performing side, so basically I play 2 instruments at one time. So I play bass guitar and keyboard at the same time. How? Yes. Literally like this, like guitar is Yes, like that. So I've been doing it for a lot time now. I used to work Any with, videos? yes, हम ऑडियंस को जरूर दिखाना चाहेंगे on YouTube. Yes, you can find me. Okay, And yes, and one so the artist that I started performing with does the same Ed Sheeran wala setup. So so now he's moved to Canada now, and but there he's doing this whole solo set by himself. That is really good. In these concerts, how much of the variables count, like environmental factors कितने count होते हैं, और seasonal factors कितने count होते हैं? जैसे आपने कहा भी off season है, तो मतलब is there something just because of the off season, या इसमें भी concerts हो सकते हैं, या इन चीजों में जैसे maybe people, एक crowd होना इतना ज्यादा और crowd ज्यादा होना कम होना, तो ये चीजें factor कैसे play करते हैं? Correct. Maybe Yes, क्योंकि अभी we are into like peak summers and almost transitioning to monsoons. तो peak summer में obviously अगर आपको कोई concert करना है तो environmental factors है, because crowd अब एक साथ मतलब जगह ज़्यादा इकट्ठा होगा तो obviously गर्मी तो है, so it's not feasible for the like the audience, मतलब वो कोई नहीं आना prefer करेगा obviously. Similarly, Rains has challenges with our like if जैसे अरिजीत सिंह concert हुआ था in 2022, right? First of all, it was supposed to happen in September, but due to rains क्या हुआ कि structure, क्योंकि पूरा heavily rain हुआ, the structure got like the ground got so drenched, तो हमारा जो structure है वो unsafe हो गया for it to like to perform, so we had to postpone it to a later date, and later it happened in November. November is like pleasant here, weather भी अच्छा है, feasible for everybody to come, ऐसे रहता है। ये factors मतलब play Yes, ये करते हैं। तो
Actually, I went on in that concert. ये 23 में हुआ, I guess. I Yes. feel remember, है ना? 20 Remember. Yes. So November I went into that concert. और हाँ, आपकी वाली बात, मैं बहुत एंड में खड़ा था, मुझे अरिजीत सिंह दिख भी नहीं रहा. तो दैट्स व्हाई आई फील कि एक स्टेडियम इज बहुत वायबल ऑप्शन के बीच में स्टार्स है एंड Yes. वी आर, तो वो बहुत अच्छा है. Stadium will be also like if you are going into a stadium, you are be like you'll be very far off. Okay, in from- stadium also. Yes. सो फिर जैसे अभी एपी डेलॉन का दिल्ली वाला कॉन्सर्ट था जिसमें लाइक ही वाज इन द सेंटर, और तो वो फिर क्रिएट होते सारा वो बनता है Yes. इंफ्रास्ट्रक्चर, Yes. वो proper सिटिंग और infrastructure. वो वैसे जो होता है. Correct. Correct. ओके. Because we did the Chandigarh edition of that, no? So I think that concept is very good, but it costs a lot to the like the management, yes, because there's this company called Giant Truss, so they've got their special truss pillars, so तभी वो एक 360 degree floating stage बनना possible था. And also it has a lot of factors, like अब जैसे जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो आ रही है, सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी विंड ब्लास्ट व्हिच इज लाइक कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर, फॉर द फॉर द पीपल हु आर देयर, फॉर देम टू बी सेफ अगर कुछ मिसहैप होता है फॉर दैट, सो देयर आर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन फॉलोड, कि जैसे अगर एक ट्रस जो लाइक 90 meters फ्लाई, मतलब अगर वो हवा में है और अगर हवा चलती है तो it would have some resistance and it might fall off. So due to security factors, the truss automatically comes down for the safety of people and something like that. So for it to be created, so there is a lot of tech that will go into it, and also it adds up to the cost. सो आपके लिए एज अ साउंड इंजीनियर क्या दोनों कॉन्सेप्ट में क्या इजी है मैनेज साउंड, मतलब इन अ सर्कुलर 360 डिग्री स्टेज और एक नॉर्मल स्टेज? सेम है दोनों के लिए. लाइक बस वो इंडोर आउटडोर का फर्क पड़ जाएगा. आई फील अगर कोई स्टेज इंडोर है लाइक 360 डिग्री, आउटडोर भी हो सकते हैं. आउटडोर ही है 360 आउटडोर. 360 आउटडोर ही होते हैं. ओके. हाँ. ठीक है. स्टेडियम ओपन. हाँ हाँ हाँ, मतलब और जैसे फॉर एग्जांपल कोल्डप्ले भी हुआ था, सो कोल्डप्ले व्हाट दे जस्ट टुक वन हाफ ऑफ द स्टेडियम, लाइक एकदम एक कॉर्नर, सो दे हैड दिस स्टेज की जो एक सेंटर में एक हो जाता है एंड एवरीबॉडी इज राउंड, सो इट्स अ 270 डिग्री. राइट. और ये लाइक स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए जैसे वो बीच में परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए डिफरेंट होता है, या क्योंकि उसमें उसमें कोई साउंड इंजीनियरिंग ज्यादा नहीं है? यस, अब जैसे आई हैव वर्कड विद सम स्टैंड अप कॉमेडियंस, जैसे हर्ष गुजराल हो गया, there was Basi and Zakir, so I did in तीनों का stand up at this auditorium called Indradhanush. And also I recorded one comedy special for one of comedians. So yes, उसके अंदर भी मतलब like sound engineering works for everything, मतलब आपके weddings, corporates में आपकी conferences होगी, to live concerts, to any religious events, like मेरे हिसाब से मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि म्यूजिक में ज्यादा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी साउंड है rather than compared to जहाँ पर एक बंदा सिर्फ बोल रहा है. मतलब मैं वो कंपैरिजन ला रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट. एज अ साउंड इंजीनियर आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे जितने भी ऑडियंस है, चाहे वो एक 360 वेन्यू है, चाहे एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में बालकनी है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो एवरी सीट पे ही इज ऑडिबल, लाइक टू गेट देम द बेस्ट एक्सपीरियंस. और जैसे टेक की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक साउंड इंजीनियरिंग की हेल्प कर सकती है क्या? नॉट रियली कर रहा है अभी कहीं कुछ चीजों कि रियल टाइम में मतलब जैसे वो भी समझ रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे आ रही है और आपको सिग्नल्स देख के यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस, मे बी इन अ वे. आई थिंक सो, क्योंकि आई थिंक इन स्टूडियो के अंदर तो काफी आ चुके हैं, बिकॉज दे हैव बीन इमिटेटिंग द वॉइसेस ऑफ अदर आर्टिस्ट. बट व्हेन इट कम्स टू मिक्सिंग के अंदर एक मशीन जो वो सुन रही है वो उसको वैसे इमिटेट कर पाएगी, बट फॉर मी, क्योंकि अगर मैं एक अरिजीत सिंह का गाना सुनता हूँ और सेम वो कंप्यूटर ने भी सुना है, और मे बी द AI learns from it. But if it happens in a live sound scenario, so things are very drastically different. I think there would be some technology that would come up, I'm sure, but again
जेनसेट बंद हो गया तो फिर AI नहीं कर पाएगा ना कुछ। Exactly. So Some partnerships would be very helpful for Yeah. you guys, right? Does psychology also matter in like mixing? कुछ ऐसी सी वर्क करता है कि इस टाइम पे आई हैव टू गिव द क्राउड दिस, नाउ आई हैव टू गिव द क्राउड दिस, मे बी जो इमोशनल वेव्स आ रही हैं, वाइब्स चेंज हो रही हैं, मे बी द आर्टिस्ट इज द सॉन्ग इज लिटिल इमोशनल, वो चीजों में ऐसे yes, it does. वो कैसे प्ले आउट करता है? Depending upon the song, अब मेरा एक song है which has to be very mellow and very slow, you know, for it to have an impact on the audience. So for me, it is my responsibility to make it sound like that. मैं basically उस गाने को mold कर सकता हूँ for the audience to have that kind of experience. Similarly, working, so I am on the sound side, right? So there are light engineers that are working towards it to make it a visually, good looking an experience. And then there's a visual guy who is doing all the visuals at the backside. So basically all together वो एक storytelling ही है, right? For you, for example, जैसे एक अरिजीत सिंह का concert, since you've been there, so एक गाना था उसके अंदर दुआ, so where he so there was this cage kind of thing, if you see as an effect from the front. So ऐसे लग रहा है कि he's singing within a cage, and that how that song plays and with all that effects is like gives you goosebumps. Definitely. तो सॉन्ग ही वैसे से एकदम जब वो Correct. ड्रॉप आ गया तो भेजी थी वो मेरे को goosebumps आ गए। मेरे को खुद आ गया, मैं तो नहीं, मैंने वो गाना सुना नहीं है, पर मेरे को ये याद है कि दुआ उसने गाया था, तो मैं पीछे बहुत खड़ा था, तो ऐसा कुछ फील मुझे नहीं हुआ, दो आई डिड, मतलब मैं विजुअली भी नहीं देख पा रहा ना उसको, तो मेरे को प्रॉपर वो मैं इमेजरी इमेजिन कर पा रहा, बट अगर आप दोनों को आ रहे हैं तो इट मस्ट बी समथिंग नाइस यार। बट साउंड इंजीनियरिंग को मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइक इसको हम स्टोरी टेलिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, कि हर एक वहां पे आप स्टोरी ही बता रहे हो, लाइफ कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट स्टोरीज, Correct. वेयर 300 लोगों की टीम इज वर्किंग, की आर वर्किंग आपको लाइट्स, साउंड इंजीनियर्स एंड अनदर इंजीनियर्स और जो भी लाइनमैन्स है, सब कुछ है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल जो चीजें हैं वो और मैटर करती हैं, और पीपल हैव टू टेक देयर एक्सपीरियंसेस बैक होम, और वो चीज इतना मेरे एकदम से दिमाग में है, लाइक एआई की हम बात करते हैं, आई गेस साउंड इंजीनियरिंग एंड जब वो वीआर के हेडसेट्स में अगर इफ यू सी अ कॉन्सर्ट, तो वहाँ पे भी वो मिक्सिंग वगैरह उस वजह से होगी, बट आई गेस वो तो प्री रिकॉर्डेड हो सकती है, बट या और जैसे अभी वर्ल्ड वाइड अगर एक कॉन्सर्ट जो सबसे फेमस है वो कोल्ड प्ले का है, कि बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, कि लोग एक्सपीरियंस करने जाते हैं कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है कैसा यार, लोगों को मतलब इतनी क्यों लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो आई फील कि एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट कॉन्सर्ट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। वो ये फैंस के, किसी के लिए टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट है, किसी के हाँ लिए बिल्कुल, मतलब हर एक आर्टिस्ट का, ट्रेविस स्कॉट का किसी के लिए वीकेंड का, मतलब सबके अलग अलग हो जाएंगे ना। वो सबकी fan following है and everybody will go no matter what. सो बिफोर दैट जो ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट है, तो एक आपने भी सुना होगा उसके बारे में कि लाइक एक कॉन्सर्ट था इसका जहाँ पे दे वर लाइक 1 लाख समथिंग लोग एंड दे वर जंपिंग, तो दे वर मतलब आई डोंट नो सही है कि नहीं, कि र्यूमर था कि वो मतलब माइनर मैग्नीट्यूड 1-2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया था उस एरिया में, बिकॉज दे वर ऑल जंपिंग एंड Mosh pit वर करने की वजह गेटिंग से, yeah. लाइक एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग वगैरह। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे जब ऑडियंस इज टू एक्साइटेड एंड हूटिंग, और वहां पे फिर आपको पता लग रहा है कि यार ये साउंड मेरे को नॉर्मल से और ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, देन यू पुश द साउंड्स, और ऐसे भी सिचुएशन होगी जो एकदम से ऑन द स्पॉट अराइज होती है सिचुएशंस ऐसी, तो ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होता because obviously लाइक system is always louder than the people. हाँ, तो भाई समटाइम्स एक सीन आया और लोग पीपल आर आउट इन द सिस्टम, दैट यू आर लाइक ओ माय गॉड आई हैव टू पुश इट डाउन। तो हमारा ना एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर, सो इट्स रैपिड फायर राउंड, फ्रेंड्स इन रैपिड फायर मिक्स, सो you have to answer in one word or maybe one sentence, ठीक है? तो what has been your favorite concert as a viewer till now? I haven't got to see any as a viewer because I'm working. But as a working professional, what would be your? Again, a very difficult question.
पॉडकास्ट इसलिए ले रहे हैं हम भाई. एक तो चूज करना पड़ेगा. I'll say Arijit Singh. Arijit Singh was the, Yes. I think, best concert. Yes. Okay. Best से याद आया, Samarth, what's the one best advice you got in your life? One best advice you got. There are no shortcuts. You have to, go down the line, get down that sewer hole to, work it out. And then, that's how you get through it. There are no shortcuts. There are no shortcuts. It was by your mentor, by your family member. किसने दिया? Basically, like, I came up with it because Okay, since I've very been, life. yeah, It very was, life. It was also life. It was also life. Okay, so Samarth, one worst advice you got. ये you regret यार, ये क्या follow कर लिया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था. तो ऐसा कोई advice किसी ने दिया हो? One of my girlfriend said job कर ले. Okay. It was nice. One dream artist you want to work with? I'll say John Mayer. Expecting that. समर्थ, किसी के साथ डिनर पे जाना है यार, एक आर्टिस्ट कोई भी होए, कौन होगा? डेड और अलाइव कोई भी? John Mayer again. से big fan. एक छोटा सा पीस ऐसा जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि whoever किसी भी आर्टिस्ट का कोई भी फैन हो, अगली बार जब आप कॉन्सर्ट जाते हो तो जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा. I'll say concert में आए हो तो concert enjoy करो, because you know what everybody does is they'll just pop up their phones and everybody start Make making stories and that ना. So you are losing on that experience, that moment. मतलब obviously अगर आप videos भी बना रहे हो, how many of us revisit them? मैं तो नहीं करता, मतलब for that matter, 98% नहीं revisit होता कभी. because my storage is full of that, but I've barely seen it. But makes no sense. So Samarth, last question of the evening. One word to describe yourself. Again, a very tough one. नहीं, I have one Maybe word. a sentence, maybe a quote you live by. नहीं है भाई. Life is a sound, you should play it. Something crazy as that. Like, I feel I can give you one. A passionate musician. I like passionate sound engineer would be a word for you. I see. Passionate audiophile is हाँ. something, but does that define me? Yeah, मतलब stay happy. Stay happy, do whatever you love to do is what I think. That what defines me, because अभी तक जो भी हूँ is because of my choices that I've made. It's like if somebody says ये करना है but मेरे को करना वो है, तो I'll do whatever I want to do. That's how I go by, because in the end, your life is what choices you make. गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, but you die on your own sword. correct. But you will be happy, like you will be happy going to grave कि हाँ मेरे को ये करना था और मैंने किया. Maybe you like do well in it, you fail in it, but at least you will be like back of the mind वो रहेगा कि हाँ यार, at least I wanted to try one thing, maybe it works out or not, but yes, it's there. And add in one selfish question here, just like you were telling about the delay rack, right? Yeah. What is another instrument or some system or some tool that is a unique thing और वो नहीं पता होता, but ये काम करता है एक पूरे कॉन्सर्ट में, just like a delay rack, मतलब ऐसा कुछ और. Okay. कॉन्सर्ट में काम करता है which somebody would not know would be, अब जैसे क्या होता है कि like most of the people have been using their outboard gears. So outboard gears क्या होता है कि एक studio gear का imitation which you take it to a live concert. That is done basically to give audience the studio effect of what you are hearing in the songs online
versus what you're hearing it live. So that is one thing that you should. That's a great one. That's a great one. It was an amazing episode. Like we got to learn as a music fan, I got to learn about a lot of things. Well, I have not attending a lot of concerts. एक ही किया है recent, but I think अब जो experience होगा, like I'm very curious. तो मैं ये चीजें देखता रहता हूँ कि वो how these things are working. ये वाली वायर कैसे जा रही है. तो वो चीज काफी fascinating लगती है मेरे को. But knowing you and knowing all the sound engineering thing, I think people will love this episode. And thank you for stopping by, man. Sure. Thank you, guys. Meet you guys in another episode of Stay Tuned. Bye.